Assalamu alaikum, all of you. Hope you all are doing well. Uh, until all the participants join us, read these questions carefully and try to answer these. Okay, just read these questions carefully until all the participants will join us. Okay, we have got 2 to 4 minutes. Okay, so just take a good look at the questions and then we'll talk about. We'll wait 2 more minutes and then we'll continue with the class. Till then, make a sentence and think, is it a complete sentence? What does it have? Write some on your notebook or somewhere else or in WordPad. Okay? फिर what is the clause? Think about these questions carefully. 2 minutes मैं wait कर रहा हूँ until all the participants will join us. Then we will start our topic from the last point we have left it. Okay? Kinds of sentences. Remember, this is the second lecture about kinds of sentences. So I have shown you such questions. You're supposed to think about these questions and then we will come up such understanding. Take your time, 2 more minutes.
Okay, students, hopefully you all have gone through these questions. Now, what are the components of a sentence? Zara quickly answer denge. I have given you enough time to think about these questions. We will be continuing the same topic we left in the previous class. वहीं से start करेंगे. I want all of you to take a good look at it और जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए. What are the components of a sentence? अच्छा, you can unmute yourself. मैंने आपको mute नहीं किया हुआ. Unmute कर सकते हैं and let's speak up. What are the components of a sentence? Quickly, one by one. Let's respond. Or you can write it down in the comments. I'm waiting for your responses. Quickly, quickly. What are the components of a sentence? Write here the responses or you can unmute yourself. Everyone, are you all there? Are you going to answer me? Yes. Abdul Rahman, Alishba, Riza, Aisha, Bisma, Javeria, Lubaba, Madiha, Maria. Let's answer these questions. What are the components of sentences? Quickly. हमने पीछे कुछ पढ़ा था ना जनाब, क्या था वो? What are these things we have already read? पिछली क्लास में कुछ टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की भी बात की गई थी. Subject and verb. Yes, Maria, you're right. What else can be? What else can be? Subject, verb and और क्या हो सकता है? Main clause और subject and predicate. Yes, object हो सकता है. Very good, very good. Two parts होते हैं, subject and predicate. Very good, शाइस्ता रिजा. Subordinate clause, predicate. अच्छा जनाब, अगर मैं बात करूं, what is a clause? क्या आंसर हो सकता है? What is a clause? Can you have more than one clause in a sentence? Yes or not? क्या किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं? ओके. हाउ डू यू जॉइन दीज टू मेक अ सेंटेंस? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कैन यू ज्वाइन टू क्लॉजेस? कैन यू ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज? यस. फैन बॉयज. क्या होते हैं फैन बॉयज? कोई बताएगा फैन बॉयज में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्विकली. फॉर एंड nor, but, or, yet. Okay. Now, what is a complex sentence? Complex sentence क्या होता है? पढ़ा था हमने? कौन कौन सी टाइप्स हमने स्टडी कर ली थी? एनी आइडिया? कौन कौन सी टाइप्स स्टडी कर ली थी? चलें. I'm going to show you the same sheet we were doing last time. Simple, compound, and complex. Okay. Look at this. We have discussed the simple sentence. हमने क्या कहा था? उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो सकता है, दो सब्जेक्ट और एक वर्ब हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दो वर्ब हो सकते हैं. और हमने कहा था कि दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो सकते हैं. ये थी किसकी एग्जांपल? सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल थी. दिस इज अबाउट द कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें दो क्लॉज होते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट. और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और दोनों को किससे ज्वाइन किया जाता है? फैन वॉइस से ज्वाइन किया जाता है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फैन वॉइस, है ना? हमने फैन वॉइस की भी बात की थी और वी हैव डिस्कस्ड दैट.
तो इसमें हमारे पास जो फैन बॉयज थे वो क्या थे, ये देखिएगा, आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग द वर्ड्स हियर, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमने फैन बॉयज कहा था। और इनकी मदद से जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया जाता है, दे बिकम कंपाउंड सेंटेंसेस। यहां तक हमने बात की थी कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जो है वो एक फैन बॉयज से ज्वाइन किया जाता है और दो कौन से क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मतलब स्टे अलोन। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो अकेले काम कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद वी हैव गॉट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर बात करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी हियर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हमने क्या बात की थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आल्सो हैज एटलीस्ट टू क्लॉजेस। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लॉजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी दो क्लॉजेस होते हैं, लेकिन फर्क होता है। the clauses are not equal, उनके clauses जो है वो equal नहीं होते। याद है हमने ऊपर भी कहा कि दो clause होते हैं, यहां भी कह रहे हैं कि दो clause होते हैं, but what's the difference? The clauses are not equal, है ना। क्लॉजेस जो हैं वो इक्वल नहीं होते। क्या मतलब है, मतलब ये है कि कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें दो कंप्लीट क्लॉज ज्वाइन होते हैं फैन बॉयज के साथ। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, अदर इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, मींस लेस इंपॉर्टेंट या डिपेंडेंट। देखिएगा, the subordinate clause also called a dependent clause, the independent clause is more important than the subordinate clause। ठीक है, अब देखिएगा, the independent clause can exist alone, है ना। क्या मतलब है, अगर हम सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो उससे हमें बात समझ आ जाएगी, लेकिन जो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमें अपनी बात नहीं पूरी कर पाएगा। मिसाल के तौर पर, I came late to school, है ना, I came late to school। अब इसके आगे let's see हम क्या पुट कर सकते हैं, I came late to school because it was raining, है ना। अब देखें, it was raining और I came late to school, दोनों क्या है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, I came to school और it was raining। लेकिन अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना चाहूं, किसके साथ, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, we lost the way because we forgot the map, है ना। अब देखें इसमें क्या हुआ, we lost the map because we forgot the map, we lost the way because we forgot the map। तो इसमें क्या है कि एक डिपेंडेंसी है, we lost the way, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और इसके साथ क्या हुआ, because of forgetting the map, because of forgetting the map। तो अब ये जो forgetting the map है, that can be termed as subordinate clause। क्या कहलाएगा ये, subordinate, less important या dependent। कि अगर हम सेंटेंस में से ये सेंटेंस, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हटा दें तो सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इंडिपेंडेंट क्लॉज से बात समझ आ सकती है, लेकिन अगर सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो हमें बात का सेंस क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात। नाउ अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लुक एट दिस, in a complex sentence the subordinate clause is introduced by a subordinating conjunction, है ना। अभी हमने क्या बात की, अभी हमने ये बात की कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जरा फर्क समझिएगा। वी वर टॉकिंग अबाउट, जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे थे तो हमने कहा फैन बॉयज, कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने क्या कहा, फैन बॉयज कहा कि फैन बॉयज ज्वाइन होंगे। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, हम यहां कह रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, कंजंक्शन वो क्या हो सकते हैं, लेट्स सी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कुछ कंजंक्शंस हियर। सी दिस, बिकॉज, although, unless, when, whereas,
Similarly, on the other hand, in the same way, है ना, ये क्या है, सारे के सारे ये कहलाते हैं कंजंक्शंस। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस। जरा डिफरेंस समझिएगा। जब हम बोल रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस फॉर्मेशन होगी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? फैन बॉयज। हम फैन बॉयज से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं फैन बॉयज के जरिए से, ठीक है? फैन बॉयज के जरिए से वी आर ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो उसे हमने कहा, क्या कहा? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा रहे हैं और दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें से एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लुक एट द एग्जांपल। अब पहली एग्जांपल देखिएगा। द स्पीकर वाज डिलेड, है ना? द स्पीकर वाज डिलेड। स्पीकर जो है उसे देर हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और उसका डिपेंडेंट क्या है? बिकॉज ही वाज स्टक इन ट्रैफिक। बिकॉज ही वाज स्टक इन ट्रैफिक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इसका रीजन, है ना, इसका रीजन क्या हो रहा है? इसका रीजन ये हो रहा है कि जनाब ये बात समझ नहीं आ, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको अगर हटा दें, हम गायब कर दें, तो यहां बात क्लियर नहीं हो रही। देखें, बिकॉज ही वाज स्टक इन ट्रैफिक, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, है ना? ही वाज स्टक इन ट्रैफिक, तो फिर क्या हुआ? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके आगे कुछ होना चाहिए था। तो हमने क्या किया? अब हमने जब इंडिपेंडेंट क्लॉज हटाया तो बात समझ आई कि भाई वो ट्रैफिक, द स्पीकर वाज डिलेड। लेकिन अगर मैं कहूं द स्पीकर वाज डिलेड और मैं इसको छुपा दूं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या कर सकता है? स्टे अलोन, अकेले खड़ा हो सकता है, उसे किसी चीज की नीड नहीं होती। लेकिन जब हमजा डिपेंडेंट क्लॉज इज मेकिंग सेंस ऑन इट्स ओन, आई डोंट थिंक सो। लुक एट दिस डिपेंडेंट क्लॉज। मैं यही तो बात समझा रहा हूं हमजा। ही वाज स्टक इन ट्रैफिक, बिकॉज लगा हुआ है, तो क्या आपको बात समझ आ रही है? बिकॉज ही वाज स्टक इन ट्रैफिक, देयर कुड बी समथिंग मोर ना। क्या रीजन हुआ? क्यों फंस गया? या इसका क्या रिजल्ट निकला? वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, तो वी कैन नॉट से दैट इट्स अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, बिकॉज यहां एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, बिकॉज ही वाज स्टक इन ट्रैफिक। तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, क्या होगा? ये देखिएगा, द इंडिपेंडेंट क्लॉज अबव कैन स्टैंड अलोन, however because he is stuck in traffic। अब आप पता है क्या कर रहे हो हमजा? आप सिर्फ इसको देख रहे हो, आप देख रहे हो he was stuck in traffic को। असल में आपने कंजंक्शन को नजरअंदाज कर दिया। हम तो क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि कंजंक्शन के साथ आप सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हो, लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट कि यहां क्या हो रहा है जनाब, कि यहां एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हुआ है। अब अगर आप इसको पढ़ो, बिकॉज ही वाज स्टक इन ट्रैफिक, इट डजंट मेक सेंस। It leaves us a question, what? Something is missing, है ना? So see this, because he was stuck in traffic cannot stand alone। ये पूरी बात नहीं समझ आ रही हमें, इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए था। It leaves us with the question what, है ना? तो the speaker was delayed। अब ये बात कंप्लीट हो रही है। तो ये सेंस है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का, कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको किसी सेंटेंस की नीड होती है, ठीक है? तो यस शाइस्ता रिजा, हु एब्सोल्युटली राइट। नाउ लेट्स सी हियर। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। लुक एट वन मोर एग्जांपल। ये देखिएगा, अब हमजा आपको यहां बात बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगी, ठीक है? ये देखिएगा, when I was a child, does it make sense? When I was a child, we are expecting something, है ना शाइस्ता रिजा? The same sense. So we are expecting something. When I was a child, dependent, जब मैं बच्चा था तो क्या करता था भाई? I used to suck my thumb, मैं अंगूठा चूसा करता था। How many of you used to do this thing? किया करते थे। कुछ बच्चे तो कुछ बच्चे तो मिट्टी खाया करते थे दीवारों से, और जो है वो व्हाइट वॉश, चूना वगैरह, है ना, छोटे बच्चे। सो ऐसे बच्चे आपको नजर आएंगे जो फिंगर या फिर जो है वो थंब सक करते हैं बचपन में अपने। खैर, तो लेट्स सी हियर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड
आई रोड माई बाइसाइकिल टू स्कूल, ये रोड माई बाइसाइकिल टू स्कूल तो कंप्लीट सेंटेंस है, बट डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो यहां बात क्लियर नहीं हो रही। यस बिस्मा, आई कैन हियर यू। जी बिस्मा बोलो। बिस्मा सर, you want to say something Bisma, or mistakenly raise hand? Bisma, are you there? Okay, fine. Okay, so let's see. अब हम आगे मूव कर रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या बात हो रही है। ये देखिएगा, as we have seen, the order of the clause in a complex sentence can vary. Independent clause फिर डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज पहले हो सकता है और क्या आएगा, कॉमा। इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा प्लीज। देखें मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, लुक एट दिस, इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू, है ना। इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू। अब देखिए, जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लेकर आ रहे हैं, किसको पहले लेकर आ रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू कम लेट इज ए डिपेंडेंट क्लॉज, इसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, है ना। इफ यू कम लेट, इफ लगा हुआ है, यहाँ कंजंक्शन लगा हुआ है, इफ यू कम लेट, ये डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया। कौन सा क्लॉज पहले आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज, डीसी, डीसी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब आई विल पनिश यू, क्या हुआ, आई विल पनिश यू। तो यहां क्या हुआ, यहां जो है हमें बीच में क्या पुट करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट अ कॉमा टू सेपरेट दीज टू क्लॉजेस टुगेदर, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में आ रहा है, तो और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यस 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 एब्सोल्युटली। तो इसमें भी तो क्लॉजेस होते हैं, डेफिनेटली। रिजल्टेंट क्लॉज क्या होगा आपके पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। और जो इफ क्लॉज है वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, डेफिनेटली अहमद सिद्दीकी। समझ आ रही है आपके। तो यहां क्या हुआ, आई विल पनिश यू इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई विल पनिश यू, है ना। ये आई विल पनिश यू क्या हो गया आपके पास, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, आई विल पनिश यू। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, आई विल पनिश यू। बात पूरी समझ आ रही है, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं इफ यू कम लेट, तो इसके आगे और पीछे कुछ होना चाहिए कि भाई क्या है इसके आगे पीछे। तो दिस इज द सेंस। इसी तरह यहाँ ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा, जैसे यहाँ किसी ने लिखा है, किसने लिखा है, हाँ शाइस्ता रिजा। देखें अब क्या होगा, अगर मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले आऊं, क्या करूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले आऊं, आई विल पनिश यू। अब मुझे कोई कॉमा रिक्वायर्ड नहीं है, इफ यू कम लेट। देखें दोनों फॉर्मूला है आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको दोनों फॉर्मूले क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया अभी, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अच्छा आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें, अदरवाइज मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। एवरीवन, हु इज दैट, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। Okay, so what were we talking about? Look at this. I will punish you if you come late. We are putting here if in between the two clauses, independent clause and dependent clause. तो ये formula बन रहा है, independent clause और dependent clause. So we don't put any of the comma here except the conjunctions. ठीक है, इस जगह conjunction आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आना चाहिए, कंजंक्शन आना चाहिए। तो ये कंजंक्शन आ गया यहाँ, और इसमें हम कोई कॉमा पुट नहीं करेंगे। डिड यू गेट इट, ये देखिएगा। तो यहाँ ये डेफिनेटली मोहम्मद, हाँ आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड। तो दिस इज द सेंस अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। लुक एट दिस, आगे चलते हैं, लास्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग, व्हाट डू यू थिंक, द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक। हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ ली,
मारिया आप इफ क्यों नहीं लगा? आई विल पनिश यू इज अ कंप्लीट सेंटेंस. यस डेफिनेटली कंप्लीट सेंटेंस है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. लेकिन अगर मैं कहूं इफ यू कम लेट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज है ना. इसमें इफ यू combination yes, very good, combination of both compound and complex sentences called compound complex sentences. ठीक है, look at the example here. और उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज करनी है. क्लियर? और आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कंजंक्शंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जो भी है, you are supposed to tell me. We'll be moving forward to the next phase, but before that we have to discuss. जितने भी लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं ना, लॉन्ग सेंटेंसेस, किसमें? आपके इंग्लिश में जो लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड सेंटेंसेस होते हैं, आमतौर पर वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं. लेट्स सी हियर, लुक एट द एग्जांपल. अ फाइनल टाइप ऑफ सेंटेंस इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, अब हम किसकी बात करें? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें. We are discussing here compound complex sentences. ठीक है, let's see. और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, क्या इसका फॉर्मूला है? Look at this. A final type of sentence is the compound complex sentences. ठीक है, the compound complex sentence contains at least two independent clauses. How many clauses? Two independent clauses and at least one subordinate clause. Let's try to find out the difference. What have we already read about? If we talk about simple sentence, it has only one clause. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और वो को पैन वॉइस के साथ ज्वाइन होंगे. कंपाउंड, और उसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है जनाब? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो क्लॉजेस हैं वो एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वो किससे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से ज्वाइन हो रहे होते हैं. Whereas on the other hand, similarly, unless, until, while, when, ये सब क्या कहलाते हैं? Subordinating conjunctions कहलाते हैं. Now we are moving forward to the compound complex sentences. Compound complex sentences में जनाब क्या बता रहे हैं कि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. जो बात याद रखने वाली है कि कम अज कम दो, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. यानी आप कह सकते हो कि एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और किसके साथ ज्वाइन होते हैं? कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन होते हैं. लुक एट दिस. Whenever I feel nervous, whenever I feel nervous, अब देखें again, whenever I feel nervous, we are expecting something. तो क्या होता है? My hands tremble, मेरे हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, पसीना आना शुरू कर देता है. Tremble. My heart beats quickly, है ना, मेरी दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है. ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. लुक एट दिस, आईसी स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्लियर? कितने? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और किससे ज्वाइन हुए हैं? डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन हुए हैं. Whenever I feel nervous, my hands tremble, my heart beats quickened, and I cannot remember simple facts. देख रहे हैं कितना लंबा सेंटेंस हो गया. तो इसमें look at this, we have got one independent, then two independent, and then three independent clauses. ठीक है, हमारे पास ये तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए और ये हमारे पास क्या हो गया? वन डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस हैविंग conjunction in it, that is called compound complex sentence. और अगर easiest sense में बात करूं तो देखें क्या हो रहा है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपस में ज्वाइन हो रहा है तो बना रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. क्लियर हुआ? देखें ना, अब कैसे, इस बात को भी जरा सुन लें. अगर देखें यहां, लुक एट दिस, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन हुए आपस में.
किसके जरिए से ज्वाइन हुए? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से ज्वाइन हुए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां क्या है? whenever। ठीक है, ये whenever के जरिए से ज्वाइन हुए। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये क्या बन गया? ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करके समझाना चाहूं आपको, तो ये देखें, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे बना भाई कॉम्प्लेक्स? क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इधर आ जाते हैं, लुक एट दिस। अगर मैं बात करूं यहां की, तो सी दिस, यहां क्या हो रहा है? यहां एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन हो रहा है। और किसके साथ ज्वाइन हो रहा है? ये ज्वाइन हो रहा है फैन बॉयज के साथ। फैन बॉयज में सेकंड क्या था? ए, एंड, है ना। लुक एट दिस एंड। तो यहां क्या हुआ? माई हार्ट बीट्स क्विकली and I cannot remember simple facts. So that could be considered as what? That is considered as compound sentence. So once we join compound and complex together, it forms compound complex sentences. Okay? यहां तक कोई confusion? Now it's time to recall quickly. और उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है, केयरफुली मुझे रिस्पॉन्स करेंगे और उसके बाद मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा। किसके हवाले से जनाब? आपके जो अभी आपने जो वो दिए हैं, सेल्फ असेसमेंट 3 दिया है, और प्लस आपने जो रीडिंग असाइनमेंट किया उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। वी हैव गॉट एन एक्सरसाइज अप नाउ। तो जब तक एक रिकॉल कर लें थोड़ा सा, मैं आपको एक एक्सरसाइज शो कर रहा हूं, ठीक है। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अब आपने क्या करना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। क्लियर? अच्छा देखिए, मैं रीजनिंग भी बोलूंगा आपको। आपने बताना है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें कितने वर्ब हैं, कितने क्लॉजेस हैं, फैन बॉयज के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, और उसके बाद आपने क्या लगाना है? देखें, एस फॉर सिंपल, सी फॉर कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स के लिए एक्स लगाएंगे, ठीक है। Before you hand in your homework, you should write your name at the top of the page. अब let's see क्या होना चाहिए इसमें। Before you hand in your homework, you should write your name at the top of the page. Number one, what do you think? What is it? Simple, compound, complex? What is it? You have to tell me. और रीजन भी बताना है, रीजन भी बताना है, ठीक है। यू मस्ट से द रीजन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है जनाब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? रीजन बताइए, रीजन बताइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? रीजन, रीजनिंग करें, जो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसको लेकर रीजनिंग करें क्विकली। एब्सोल्युटली, यस हमजा खान, एब्सोल्युटली। देखिए, बिफोर यू हैंड इन योर होमवर्क, टोटली डिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या आ रहा है? बिफोर। इस तरह की रीजनिंग भी चाहिए मुझे, ठीक है। वन डिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट एंड वन इज इंडिपेंडेंट, तो इस तरह की रीजनिंग भी चाहिए मुझे। यू शुड केयरफुली नो दैट कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, एंड देन फिर क्या हो गया जनाब? यू हैव गॉट, लेट्स सी हियर, ये आ गया आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, नाउ यू हैव गॉट what? You have got this dependent clause before you hand in your homework, है ना। It means something is missing, तो फिर क्या, पहले क्या है ना, what का आंसर नहीं मिल रहा। और look at this part, you should write your name at the top of the page. It's a complete sentence, है ना, independent clause. So once we join dependent clause along with an independent clause using subordinating conjunction, it becomes complex sentence. So what's the right answer here? Is this. Okay, this is the right answer. Clear? Now the second one, I saw three movies last week. Quickly. Very good, absolutely, you are all right. S is
Simple sentence. Very good. Number 3. Family and friends are more important than career success. Yes, what do you think? Yes, absolutely. Because it has got only one clause. So we could select this option as well. Okay, now the next number 4. The company's director are young and enthusiastic, but they do not have much business experience. जी जनाब क्या होगा? देख लें गौर से. Are you sure? देखिए फिर आप लोग कुछ गलती कर रहे थे. देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. I'm just underlining. ठीक है? Look at the thing carefully. The company's directors are young and enthusiastic. Is it a dependent clause or an independent clause? What do you think? Tell me, independent or dependent clause? Yes, definitely independent clause. Now look at this. They do not have much business experience. Again, है ना? They do not have much business experience. और किसके साथ join हो रहा है? फैन बॉयज के साथ ज्वाइन हो रहा है. और फैन बॉयज क्या है? बट है ना. आपको यहीं से क्लू कर लेना चाहिए कि फैन बॉयज के साथ ज्वाइन हो रहा है तो डेफिनेटली, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहे, तो व्हाट वी कुड कॉल इट. अब जरा श्योर होकर बात करें, क्या होएगा? व्हाट इज द आंसर हियर? यस, कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो यू शुड नो दैट दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो द राइट आंसर इज कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? Compound sentence is the right answer. Okay. As soon as the snow stopped, the children went tobogganing. पहले तो मुझे ये बताओ tobogganing का मतलब क्या होता है? किसको पता है tobogganing? As soon as the snow stopped, the children went tobogganing. Yes, absolutely. ये complex sentence है क्योंकि इसमें ये वाला पहला वाला clause जो है वो dependent clause है और दूसरा वाला जो है वो independent clause है. लेकिन मेरा एक और सवाल ये था, तो beginning का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए. The children went to beginning. आप में से किसी ने भी नहीं की है ये. हिचहाइक तो किया होगा आपने, लेकिन to beginning नहीं किया होगा. किया है किसी ने? यस 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 एब्सोल्युटली. ठीक है, तो ये जो है ना फॉरेन कंट्रीज में जहां बर्फबारी ज्यादा होती है वहां ये गाड़ी यूज होती है, स्लेज यूज होती है, जिसमें वॉल्स लगे हुए होते हैं और उनके जरिए से ये खींचते हैं इसको. ठीक है. नाउ इफ यू मिक्स रेड एंड येलो यू गेट ऑरेंज. जी बताइएगा कौन सा सेंटेंस है ये? फोर में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों है. जरा एक्सप्लेन करें कैसे जनाब. फोर में देखिए, द कंपनीज डायरेक्टर आर यंग एंड एंथुजियास्टिक. ये तो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और ये दे डू नॉट हैव मच बिजनेस, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज फैन बॉयज के साथ ज्वाइन हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का आंसर है. और नंबर 5 जो है उसमें क्या है हमारे पास? एज सून एज द स्नो स्टॉप डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसका आंसर क्या राइट है? दिस वन इज राइट आंसर. ओके, इफ यू मिक्स रेड एंड येलो यू गेट व्हाट? यू गेट ऑरेंज. क्या होगा? अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, if you mix red and yellow. Now move forward. I'm clearing my screen. Zara quickly. We have got a list of it. अच्छा, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डायरेक्ट हम पूछ रहे हैं ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए. We have to discuss some other things as well. Thomas Edison invented electric light bulb. Okay जनाब, इसका राइट आंसर क्या है? सिंपल सेंटेंस. ठीक है, just wait for a while. Yes, so what is the right option here? Is simple sentence. ठीक है. Now
The Smiths bought a smaller house after their children left home. After their children left home. Yes, absolutely right. Complex sentence. Larry told a joke and everyone laughed. Number 9, yes, very good. Number 9 is a compound sentence. Larry told a joke, everyone laughed. दोनों complete sentence हैं and fanboys के साथ join हो रहे हैं. ठीक है? Independent clauses हैं दोनों. Although I'm not on vacation, I check my email every day. Number 10, yes, complex sentence है क्योंकि although यहाँ subordinating conjunction आ गया, I'm on vacation जो है वो आपके पास dependent clause आ गया, I check my email every day. Independent clause हो गया. ठीक है? Let's move on to the next part. Now let's try this one. Yes, please. My car needed new brakes, so I took it to the garage. क्या होगा? My car needed new brake, I took it. तो compound sentence हो गया. We have locked that. ठीक है? Compound sentence. Okay. If the economy gets worse, many people will lose their jobs. Complex sentence हो गया. Robin Hood stole money from the rich and gave it to the poor. कौन सा sentence हो गया? Robin Hood stole money from the rich and gave it to the poor. Compound sentence हो गया. And fanboys के साथ join हो रहा है. दो independent clauses आ रहे हैं. Many plants died because she forgot to water them. Mary's plant died because she forgot to water them. कौन सा sentence हो गया? Complex sentence हो गया. Whenever I need to make an important decision, I ask my friends for their advice. Very good. Complex sentence. ठीक है जनाब. Now move on to the next part. Emily, Sarah, and Hannah are among the most popular name for girls. For baby girls in Canada. Okay, simple. Yes, you're right. Simple. Now the next. Heights don't bother me, but I'm terrified of dark places. Compound sentence. Okay, that's all. आपने आज टॉपिक कवर किया. इट इज ये है क्या टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो इसकी इंटरनेट से एक्सरसाइजेस सर्च कीजिएगा. दैट विल रियली हेल्प यू आउट. ठीक है? इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? अब मैं जरा आपसे कुछ जो है वो वी हैव गॉट 10 to 12 मिनट्स. इसमें मैं जरा आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह शो कर रहा हूँ जो हमने आपको दिए थे. कहाँ दिए थे? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन योर रीडवर्क्स के कुछ असाइनमेंट्स पर बात करूंगा और कुछ आपके जो सेल्फ असेसमेंट हमने ली थी उस पर बात करेंगे. ठीक है? पहले तो ये देखिएगा जरा अपना रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ. आई एम जस्ट शोइंग यू योर रिजल्ट हियर. पहले तो आप वो देख लें और मुझे ये बताइए, काइंडली ये बताइए कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये आर्टिकल्स क्यों नहीं कर रहे. हैव यू गॉट सम कंफ्यूजन इन इट? मुझे ये देखिएगा, मैंने लास्ट टाइम आपको ये 21 जुलाई को दिया था और 25 जुलाई तक का आज आपका टाइम था और मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इसको. लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ रुबा आफ्ताब, हाफिज उमर, अहमद सिद्दीकी, हादिया आबिद, आप लोगों ने ये असाइनमेंट अभी तक सबमिट ही नहीं किया. अच्छा, जिन्होंने सबमिट किया उनका मैं दो सवाल रह गए चेक करने को, वो भी चेक कर लूंगा. लेकिन आप लोगों ने पूरा क्यों नहीं किया? मैं बड़ा इस चीज को लेकर सादिया एजाज, हाफिज बुशरा, सैयद फर्रुख, सीमल फातिमा, उमैसा और ये एमन नाज, सुहेब रहमान, अब्दुल सबूर, मोहम्मद सैफ, मुनव्वर और अबू उबैदा, हफ्सा, सुहेब जिया और ये. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस असाइनमेंट. आपने ये असाइनमेंट नहीं किया, बाकी अपने अपने ग्रेडिंग्स और मार्क्स वगैरह देख लें. ठीक है? और लेट्स सी, ये था एम कैट का. और अगर मैं बात करूं ई कैट की, तो ई कैट में भी सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने ये असाइनमेंट स्पेस जंक्स जो है वो सबमिट किया.
कैन आई आस्क यू व्हाई? ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, साकिब अली है, अलीजा बानो है, हुदा जाफरी हैं, इरम खान है, साद खान, सॉरी, मोहम्मद मुजम्मिल, अब्दुल रहमान, अम्मार और सुएब जिया, आप लोगों ने ये क्यों नहीं सबमिट किया? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आपको पता है ना, यू विल हैव योर रीडिंग पार्ट्स एज वेल इन योर एग्जाम्स। आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोगों को जो असाइनमेंट मिल रहे हैं टाइमली उनको जरूर करें। और हाँ, ये कैट का ही दिखा रहा हूँ, अलीजा बानो, आपने तो किया ही नहीं है अलीजा। अच्छा आपने किया, सॉरी 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 अलीजा। ठीक है, आप दोनों में इनरोल हो क्या अलीजा? आप इस क्लास में भी उसमें भी हो। हाशिर, साकिब, हुदा जाफरी, अलीजा आपने 100% किया है, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। नाउ लेट्स सी हियर, जिन लोगों के यहाँ ब्लैंक आ रहे हैं, रेड मार्क आ रहे हैं, दे डिड नॉट डू इट। ये देखें, ये वाला जो मार्क आ रहा है, इट मींस यू डिड नॉट डू इट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग ये काम जरूर कर लें और अपने असाइनमेंट जो भी आपके पास ड्यू हैं, यू हैव टू सबमिट इट इन टाइम। ठीक है, स्पेस जंप मैंने ये बीएस में भी दिया था। मैं हानि, आपने 100% किया है स्कोर। आप का रिटन स्कोर तो सही है, इसमें मल्टीपल चॉइसेस में दो आपके जो हैं वो गलत हो गए, तो यू हैव टू सी दिस। ठीक है, और नाउ तो यहाँ तक का मैं ये आपसे मैंने एक असाइनमेंट शेयर करना था। काइंडली जो भी आपके पास असाइनमेंट आ रहा है उसको गौर से देखा करें, उसको गौर से पढ़ा करें, और चीजें उसी में होती हैं। लेट्स सी, अगर मैं इसकी बात करूं, लेट्स सी दिस आर्टिकल। ठीक है, अगर मैं इस पैसेज की बात करूं तो ईच एंड एवरीथिंग इज हियर। इस पैसेज में सब कुछ मौजूद था, यू हैव टू रीड इट केयरफुली, और उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस मौजूद थे। व्हाट इज एन ऑश? तो ये तमाम चीजें यहाँ मौजूद थी, और आपने क्या करना था, यू हैव टू आंसर राइटली दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने इसको सही आंसर करना था। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको जो भी यहाँ असाइनमेंट मिल रहा है, काइंडली काइंडली इन असाइनमेंट्स को जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया, यू कैन डू इट टुडे। मैं आपको एक और चांस दे रहा हूँ, द वन हु हैवंट डन येट, दे कैन डू इट नाउ। आप ये काम अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके अलीजा बानो, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, हो सकता है कोई और हो, आई नेग्लेक्टेड। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाए सेल्फ असेसमेंट पर। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में लुक एट दिस, 53 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड दिस सेल्फ असेसमेंट। मैं आप में से जितने लोग अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जरा जल्दी से अपनी ईमेल अकाउंट खोल लें, अपना ईमेल अकाउंट खोलें क्विकली। अच्छा, अपना ईमेल अकाउंट खोलें आप लोग। मैं यहां से आपके स्कोर रिलीज कर रहा हूं, आई एम रिलीजिंग योर स्कोर फ्रॉम हियर। और आपने करना क्या है, लेट्स सी, अपने करेक्ट आंसर देखिए और रॉन्ग आंसर्स देखिए। ठीक है, आई एम रिलीजिंग योर स्कोर्स। ये देखिएगा, इसका जो सी दिस, अच्छा एक एक का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे इस तरह दिखाना। लेट मी, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू योर, मैं आपसे आपके स्कोर्स जो हैं वो, अच्छा 19 जुलाई को आपके स्कोर रिलीज हो गया, इसका स्कोर। अच्छा आपके पास ईमेल आ गई होगी, ओके, या स्कोर हैज बीन ऑलरेडी रिलीज, ये स्कोर ऑलरेडी रिलीज हो गया है। ठीक है, और 19 जुलाई को ये स्कोर जो है, मैं आपको यहाँ से आपके मार्क्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये वाला असाइनमेंट होपफुली कि आप सबने इसका रिजल्ट वगैरह देख लिया होगा। डिड यू गेट इट? ओके 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 फाइन। अच्छा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये तमाम इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस पर बेस करता हुआ एक असाइनमेंट था। लेट मी चेक, मैंने आपको लास्ट टाइम सेल्फ असेसमेंट 4 भी दिया है क्या? हैव आई गिवन यू सेल्फ असेसमेंट 4?
ओके, सेल्फ असेसमेंट 4 मैंने भी मैं आज या कल में आपको सेल्फ असेसमेंट 4 भी जो है वो असाइन कर दूंगा और यू हैव टू डू दिस एज वेल। ठीक है, आपको ये वाली सेल्फ असेसमेंट भी करनी है। It has also got 20 questions in it. In the same manner, you can get help from Google as well. You can search the things if you find some difficult, because these are the real practices of your test. जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, whatever you are reading, it will definitely help you out in these senses. ठीक है, आपको ये help मिलने वाली है इससे, और you can work on that. More than that, मैंने आपसे ये vocabulary sheets वगैरह शेयर कर ली हैं। खास तौर पर इन वोकैबुलरी को देखिएगा। आपके पास वोकैबुलरी के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। आई हैव ऑलरेडी शोड यू इन द लास्ट क्लास। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। आप में होपफुली के सबके पास ये वर्कशीट्स होंगी। अगर नहीं है तो गूगल क्लासरूम में जाइए, वहां ये वर्कशीट पोस्टेड है। पीछे जाते जाएंगे तो आपके पास वर्कशीट्स आती जाएंगी। ईद के फौरन बाद मैं कुछ असाइनमेंट्स भी आपको असाइन करने वाला हूँ। आई एम जस्ट असाइनिंग सच असाइनमेंट्स टू यू ऑल। ठीक है, तो वो असाइनमेंट्स भी मैं आपको ईद के बाद शुरू कर दूंगा, और लेकिन उसका टाइम थोड़ा कम होगा। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, क्लियर? दैट विल रियली हेल्प यू इन दैट सेंस। और इस जो ईओटी है आपकी, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और जो सवालात, जिन सवालात में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उनमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। If you have any confusion, feel free to ask, और होपफुली कि आप लोगों की कल की जो ईओटी होगी, कल है आप लोगों की ईओटी ना, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज दैट सो? यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई सवाल? अच्छा, आप में से कौन कौन वो ग्रामर मॉन्स्टर पर, जो मैंने एक वेबसाइट आपसे शेयर की है, ग्रामर मॉन्स्टर, इस पर आप लोग कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगला टॉपिक मेरा कंजंक्शन का है। किसका? कंजंक्शंस। ठीक है, अभी जो हमने कंजंक्शंस देखे ना, उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको एक यही वाली साइट बता रहा हूं। ठीक है, कंजंक्शन, ग्रामर मॉन्स्टर, इस टॉपिक को बहुत थरली रीड कीजिएगा। आई एम गिविंग यू द लिंक इन द ग्रुप में भी लिंक शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और प्लस आपको यहां भी दे रहा हूं। मेक इट सेव समवेयर, आप इसको कहीं सेव कर लें, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। वी विल बी डिस्कसिंग दिस। ठीक है, हम ये जो है नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कंजंक्शंस को लेकर होगा। तो यहाँ बहुत डिटेल्ड जो है वो एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, और जो है वो एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं। तो होपफुली यू विल ट्राई ऑल दीज थिंग्स। मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, आई एम शेयरिंग इन द ग्रुप एज वेल। मैं ग्रुप में भी आपसे शेयर कर रहा हूं। वेट, ठीक है, आई एम शेयरिंग इट इन द ग्रुप। ये मैंने लिंक ग्रुप में भी शेयर कर ली है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो इसी से पर्टेनिंग करता है, और हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कशन में लेकर आएंगे। ठीक है, मस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेल। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं यहां भी आपको, हाँ हाँ बोलो, अच्छा मिल गई। ठीक है, मैं यहां भी आपको ये लिंक सेंड कर रहा हूं, यहां से भी कॉपी कर सकते हो। हाँ सायरा, मैंने कल अपलोड कर दिए थे, शेयर नहीं किए, इंशाल्लाह आज कर लूंगा। डोंट गेट योरसेल्फ एट ईज। होपफुली आप सबको सारी चीजें मिल रही होंगी। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो न्यू एडमिशंस हैं, प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह ईद से पहले, यानी आज या कल में, आज मेरी कंटिन्यूअस क्लास है, इंशाल्लाह कल मैं, जो भी आप में से जो अभी जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया,
26 जून को ज्वाइन किया है या व्हाटएवर जो भी डेट्स हैं आप लोगों की, जो यानी इस मंथ में आप लोगों ने ज्वाइन किए हैं, तो होपफुली मैं उनसे भी प्रीवियस लेक्चर्स शेयर कर लूंगा। और अगर आप में से कोई है जिसको कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए और वो मिस हो गया उससे, तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, लेकिन 2 दिन का वेट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग ऑल द थिंग्स विद यू ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस मारिया, डेफिनेटली सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। बार बार आप डिस्कनेक्ट हो रही थी, इंशाल्लाह आपको मैं ये लेक्चर आज ही अपलोड कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।